Hello everyone, welcome back to Knock Knock Air Education, and I hope all of you are doing good. So here we are with another video on the tricks and tips on eigenvalues. But in this session, after knowing two tricks, we will solve a few questions so that I can see you in previous year questions that have come recently. There we can use such kind of tricks so that you don't think so that we are reading it just for no purpose. We are reading this so that in exam we can use these kind of tricks and we can make our calculation a little simpler and save our time. Okay, so before solving few questions, I'll just give you few more tricks which we did in our yesterday session as well. Okay. So the tricks that we will be dealing today is, first of all, you need to understand that suppose we have a matrix, fine, whose all the entries are 1, fine, whose all the entries are 1. So suppose we have a n cross n matrix and there all the entries that we have are equals to 1. So this is the matrix that we have, and if somebody asks us what are going to be its eigenvalues, one way is to solve your that process that we know, determinant of a minus lambda I equal to 0, and then you can find out the eigenvalues. Okay, but in exam we don't have that much of time, and today I will show you one question which has been asked this year only, and if we are able to apply this trick we would have solved that question within 45 seconds. Okay, and that much time we can apply in those questions of section C which were quite lengthier. So we have this matrix. So what I will do is that firstly I will tell you how we got this, then I will write down the general result and you have to remember that. Okay, before that you just have to go for one more trick, that if sum of all the elements, if sum of all the elements in each row of the matrix is same, then the sum is one of the eigenvalue of the matrix, is one of the eigenvalue of the matrix. So suppose I give you one matrix P which is like this, A, B, C, then here we have B, A, C, and then we have C, A, B. Now you see, for this matrix what we have is that sum of all the elements in first row is what? A plus B plus C. Then sum of all the elements in the second row is what? Again A plus B plus C. Okay, in R2 A plus B plus C. And sum of all the elements in third row is what? Again A plus B plus C. So from here I can directly say that A plus B plus C is an eigenvalue of P. Okay, is an eigenvalue of P. This is one of the trick that we will be using in lot many questions, and the similar results hold for column also. Okay, like if all the elements we are going to sum up in each column of the matrix, and if that sum came out to be same, then that becomes what? That becomes the that sum becomes the eigenvalue of the matrix. Okay, suppose I am giving you one example. Here we have for example, say I'll show you one matrix where I will use this later on. Okay, but for time being you can just learn this thing, that if sum of all the elements in each row is same, then that sum is going to be one of the eigenvalue, or if sum of all the elements in each column is same, then that sum is going to be one of the eigenvalue of the matrix. Okay, just like in this case also, you see sum of all the elements in each column is also A plus B plus C. Then don't say like this, A plus B plus C is going to be an eigenvalue of P, but it is going to be repeated 2 times. Only one time we can say. It can repeat 2 times, but we are not sure about that. One thing that we are sure about is that A plus B plus C is going to be an eigenvalue of the matrix P. Fine. This was our first thing that we have to study. Fine. Now coming to the second part that I was discussing, that suppose we have a matrix where all the entries are 1, then if somebody asks us what is the eigenvalue, what answer do we have to give? Okay, so for this
You see, if we have a 2 cross 2 matrix and there all the entries are 1, now you apply this trick. Sum of all the elements in each row is 2 and sum of all the elements in each column is also 2. So 2 is going to be one of the eigenvalue. And then you see one thing, determinant of A is 0. So obviously one of the eigenvalue has to be 0. At least one of the eigenvalue has to be 0. So, and it has only 2 eigenvalues. Why? Because it's a 2 cross 2 matrix. So obviously that is going to be 0. So this was for 2 cross 2 matrix. Now you suppose we have another matrix and that is of order 3 cross 3. Okay. 3 cross 3 where all the entries are what? All the entries are coming out to be 1. I will tell you the trick, but let's just understand from where we are getting all these things. Okay. So see here, sum of all the elements in each row is 3. In R1 it's 3, in R2 it's 3, in R3 also it's 3. In column also C1, C2, C3 you can see it's 3. So one of the eigenvalue is going to be what? 3. Since all the rows are identical, so if to any of the 2 rows or any of the 2 columns are identical, then determinant of that matrix is 0. So from here what I can conclude, at least one of the eigenvalue has to be 0. So suppose I am considering lambda 2 is 0. Now I want to find out what? I want to find out lambda 3 because it's a 3 cross 3 matrix, so it will have 3 eigenvalues. So trace of B is going to be what? Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. I hope all of you know that trace of any matrix is equal to the sum of the eigenvalues and determinant of any matrix is going to be product of all the eigenvalues. And what is the trace of B? See, trace of B is nothing but 1 plus 1 plus 1, that is 3. Lambda 1 is your 3, lambda 2 is 0 and lambda 3. What? Lambda 3 came out to be 0. So from here what we concluded, for a 2 cross 2 matrix where all the entries of the matrix are 1, the eigenvalues were 0 and 2. For a 3 cross 3 matrix where all the all the entries are 1, the eigenvalues are what? 0, 0 and 3. Fine. Similar way you will find out for a matrix of order 4 cross 4 where all the entries are 1, the eigenvalues that you will get is equal to 0, 0, 0, 4. I hope now you are understanding that the trick that we are going to study says what. So here I am going to write down the general result. See one thing, order was 2 cross 2. So one of the eigenvalue was what? One of the eigenvalue was 2. Fine. The order was 3 cross 3. So one of the eigenvalue was 3. The order was 4 cross 4. So one of the eigenvalues are 4. One of the eigenvalues 4. And rest all the eigenvalues are 0. So here is the general result. If you have a matrix of order n cross n where all the entries are 1, so eigenvalues of that matrix are going to be 0, 0, 0, 0 and one of the eigenvalue is going to be equals to n. That means n minus 1 eigenvalues are 0 and one of the eigenvalue is equals to n, which is nothing but the order of the matrix. So directly you will not get this question, but you can use this trick or this concept in a question where it is applicable, so that it can save your time. Because see, if this is the matrix and you are just evaluating determinant of C minus lambda I equal to 0, इतने टाइम में तो कोई बच्चा आंसर करके आगे निकल चुका होगा, आप तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो. Okay, so you should have such kind of tools in your hand so that they can save your time and you can utilize that time in some other question, like in section B where you have to check all the 4 options. Fine. So this is the concept and these 2 things which I need to discuss today. One, where all a matrix where all the entries are 1, and the one if sum of all the elements in each row or in each column is same, then that sum becomes one of the eigenvalue of the matrix. Okay. And today we will do few questions also on the tricks that I discussed with all of you yesterday about the eigenvalues itself. Fine. So let's discuss few questions. This is the question that I will discuss with you first.
and this question was asked in the year 2017 in NET part. Usually these tricks help us in NET questions only. So, and if question comes in MCQ or MSQ, you can apply there also. So see, this is a matrix of order 4 cross 4, where they said that alpha, beta, gamma and delta are the eigenvalues of this 4 cross 4 matrix. Then we need to find down an expression, alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square is going to be what. So see, in such kind of questions you have to be very attentive, that ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा ऐसा हो रहा होता कि कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही होती, क्योंकि ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है. पहली बात तो ये कि हम a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालें, ज़ीरो करें, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास. क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो पिछले 1-2 साल से यू विल सी कि सेक्शन सी जो है वो थोड़ा सा लेंदी आ रहा है. तो आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है कि कहीं का टाइम बचा के आपको कहीं यूटिलाइज करना है. ठीक है. सो ये तो नहीं करने वाले, तो थोड़ा सा मैट्रिक्स पे फोकस किया करो. एक बार जब आप मैट्रिक्स को फोकस करना शुरू करोगे, यू विल सी कुछ ना कुछ पक्का वहाँ लग रहा होगा जिससे आप बहुत इजीली आंसर निकालो. पहली चीज़ जो यहाँ ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि पहली रो पूरी ज़ीरो है. एंड आपने क्लास 12th 11th में पढ़ा होगा कि अगर इफ वन ऑफ द रो और वन ऑफ द कॉलम इज कम्प्लीटली ज़ीरो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ज़ीरो. और अभी मैंने बोला इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, देन एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यू हैज टू बी जीरो. सपोज आई एम कंसीडरिंग दैट इज अल्फा, तो अल्फा तो जीरो हो गया. अब बाकी आइगन वैल्यू निकालनी है तो फिर से हम m माइनस लैम्डा आई के कॉन्सेप्ट में तो नहीं जाएंगे. फिर हमें याद करना है कि कुछ तो कुछ मतलब स्पेशल होगा इस मैट्रिक्स के बारे में. एंड नाउ यू सी वन थिंग, डायगोनल के नीचे आपको 1 मिल रहा है. ये वाली एंट्री माइनस a0 हो गई, ये माइनस a1 हो गई, ये माइनस a2 हो गई, और ये माइनस a3 यानी माइनस an माइनस 1. सो विच मैट्रिक्स डज इट रिप्रेजेंट? इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ कंपेनियन मैट्रिक्स विच वी स्टडीड येस्टरडे. ऐसे पहचानना होता है और ऐसे टाइम बचाना होता है. अब हमें पता है x to the power 4 प्लस a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इक्वल टू 0. हमने पढ़ा था, राइट. यहाँ से कंपेयर करेंगे हम लोग तो हमें a0 क्या मिल रहा है, a0 हमें 0 मिल गया, a1 हमें 2 मिल गया, a2 माइनस 1 मिल गया, a3 माइनस 2 मिल गया. और देखो भी यहाँ से एक 0 आइगन वैल्यू निकल भी आएगी. रखो यहाँ x टू द पावर 4 प्लस a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 ऑलरेडी 0 था. नाउ यू सी टेक x कॉमन, आपको एक आइगन वैल्यू देखो मिल रही है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 मिल रही है ना. देखो x इक्वल टू 0 एक आइगन वैल्यू जो कि हमने अल्फा मानी थी. अब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसे हमें सॉल्व करना है. x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0. आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है. और अब हम सिंथेटिक डिविजन मेथड लगा सकते हैं. ठीक है, एक रूट हमारे हाथ में x क्यूब का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का, x का, एंड देन जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है यहाँ हम 0 रखते हैं, यहाँ ऐड करते हैं 1, मल्टीप्लाई करो, दिस इज 1, अगेन यू ऐड देम माइनस 1, मल्टीप्लाई करो माइनस 1, ऐड करो माइनस 2, मल्टीप्लाई करो एंड दिस इज माइनस 2. लास्ट में ऐड करने पे 0 आ गया, मतलब आपका जो मेथड है वो सही है. ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और आपको पता है दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 करोगे तो आपको x इक्वल्स टू 2 मिलेगा और x इक्वल टू माइनस 1. तो आप देखो आपको x की 4 वैल्यूज़ मिली, 0, 1, देन माइनस 1 एंड देन 2. तो ये सपोज कर लो अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है. आपको निकालना था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर. सिंपली क्या मिलेगा, 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 6. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज व्हाट, वॉज 6. तो अगर आप इस तरीके के ट्रिक्स यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा. ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ लिखा, x टू द पावर 4 a3x क्यूब. इफ़ यू आर इन अ प्रैक्टिस आप डायरेक्ट ये लाइन लिखोगे, उसके बाद आपको दिख रहा है 0 है तो आप ऑलरेडी ऐसा कुछ लिखोगे. सिंथेटिक डिविजन मेथड अगर आपको पता है, दीज कैलकुलेशंस आर नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. यू आर गोइंग टू डू इट विद इन 10 seconds, ओके, एंड आंसर इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू. और यहाँ से जो टाइम बचेगा वो आप कहीं और लगाओगे. ठीक है. सो कल हमने जो कंपेनियन मैट्रिक्स पढ़ा था, आप देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे ये ट्रिक एप्लीकेबल हो रही है.
और अगर आपको नहीं पता होता तो फिर आप a माइनस लैम्डा आई निकालते, उसका डिटर्मिनेंट निकालते, वहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा आता। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा, वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। फाइन, सो दैट्स इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया है, ठीक है, अगेन एनआईटी टाइप है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है, जब कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी मैट्रिक्स, चाहे उसका ट्रेस हो, डिटर्मिनेंट हो, आइगन वैल्यू हो, ऑलवेज पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू द मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स को देखते हो, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हो, मे बी यू आर एबल टू सी अ स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्म विच इज प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स एंड आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। सी दिस इज द मैट्रिक्स 0 0 2 1 0 -4, दिस इज 0 1 3। अब बिना मेरे कहे कल का सेशन जिन बच्चों ने देखा है वो कह सकते हैं मैम दिस इज अ कंपेनियन मैट्रिक्स विच इज दिस इज -a0 -a1 एंड -a2, बट हमें इतना कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, फिर भी मैं बताऊंगी क्यों। जस्ट सी हियर, क्वेश्चन सेज इफ 2yz where yz belongs to R is an eigenvector corresponding to a real eigenvalue of the matrix, then z minus y is equal to, एक यहाँ पे वर्ड है जिस पे हमें फोकस करना है, corresponding to R real eigenvalue, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, अगर एक से ज़्यादा इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल होती तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं करते कि 2yz इज अ वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस रियल आइगन वैल्यू, राइट। उनको मेंशन करना पड़ता, नहीं तो ये क्वेश्चन एमटीए हो जाता। अगर मोर देन वन रियल आइगन वैल्यू तो हमें कैसे पता ये किसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के पास केवल एक ही रियल आइगन वैल्यू होगी फॉर श्योर, नहीं तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाता, एमटीए हो जाता। फाइन, दूसरी चीज, रो सम कॉलम सम हमेशा चेक कर लिया करो। रो सम चेक करोगे तो R1 में तो रो सम 2 आ रहा है, R2 में -3 आ रहा है, R3 में कितना आ रहा है 4, ये तो नहीं बना कुछ। लेकिन जब भी आप रो सम चेक करो ना, कॉलम सम ज़रूर चेक कर लिया करो। आप देखो C1 में 1 आ रहा है, C2 में 1 आ रहा है और C3 में 3 + 2 5 -4 1। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की 1 एक आइगन वैल्यू है, और अगर 1 आइगन वैल्यू है तो यही रियल आइगन वैल्यू होगी। अगर मोर देन 1 होती तो क्वेश्चन एमटीए हो जाता, डन, क्वेश्चन हो गया। एंड सपोज अगर आपका ध्यान नहीं जाता है इस बात पे, तो उसके लिए तो फिर कंपेनियन भी पढ़ा रखा है, यूज कब करोगे। तो a0 कितना मिल गया हमको -2, a1 कितना मिल गया हमें 4, a2 मिल गया -3। आप फॉर्म कर लो x³ + a2x², यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, प्लस a1x मतलब ये आया, प्लस a0 ये आ गया। अब आप देखो x = 1 सेटिस्फाई कर गया इस पॉलिनोमियल को, सी 1 एक रूट हो गया, यही एक रियल आइगन वैल्यू होगी, वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो यू शुड हैव मल्टीपल नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन, सो दैट इन एग्जाम अगर एक अप्रोच काम नहीं करी तो आपके पास दूसरी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि हम ऐसे इजी क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इनको छोड़ा तो भूल जाओ सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। सो दिस वॉज वन ऑफ द एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वी नो दैट इफ x इज एन आइगन वेक्टर तो ax इज इक्वल टू λx होता ही है, वेयर x इज नॉन जीरो। तो सॉरी, यहाँ पे अब कंफ्यूज ना हो जाओ आप इस x से, बिकॉज हमने यहाँ पे ये कैपिटल X है, फाइन। तो हमारे पास क्या होगा ये, अब λ = 1 हमने आइगन वैल्यू निकाल ली, यानी ax इज इक्वल टू 1 × x, ठीक। अब A मैट्रिक्स आपको क्या दी थी वो लिख लो जरा, 0 0 2, दिस वॉज योर 0 0 2 1 0 -4 एंड देन वी हैव 0 1 3 0 1 3, और ये जो आपको x आइगन वेक्टर दिया था वो क्या था 2yz, दिस इज 2yz, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2yz, फाइन। अब आप देखो पहली रो जब इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 2z, पूरा सॉल्व भी नहीं करना है हमको, ठीक है। तो अब जब आप कंपेयर करोगे तो आपको देखो 2z = 2, राइट, यानी z = 1 मिल गया, पूरा सॉल्व नहीं करना। लास्ट वाली रो भी रख लो क्योंकि सेकंड वाला तो हमको फिर से z की वैल्यू देगा, तो थोड़ा सा हमको ऐसे काम करना है, बिल्कुल पूरा काम करके वहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है। वी जस्ट वांट आंसर एंड वी जस्ट वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें पता है ये लास्ट वाला हमारा काम करेगा। तो दिस इज y + 3z, तो आप देखो y + 3z जो है वो z के बराबर है, यानी y = -2z आ गया, y = कितना आ गया -2। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे,
क्वेश्चन में पूछा है हमसे z माइनस वाई, z की वैल्यू हमने कितनी निकाली, z की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -2, वी गॉट 3। ओके, सो क्या आंसर आया हमारे पास यहाँ पे 3। सो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल। छोटी छोटी ट्रिक लगाओ, नहीं तो फिर a माइनस लैम्डा है और निकालोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो वहाँ से 2 कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, 1 रियल मिलेगा, उस पर हमें जाना ही नहीं। हमें पता है 2 कॉम्प्लेक्स आने, अगर नहीं होते तो वो क्वेश्चन एमटीए हो जाता। ठीक है, तो अब अभी जो हमने ट्रिक की बात करी, ओके, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, सी 2022 में यानी इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके थे। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द 4x4 मैट्रिक्स M विच इज, आप देखो डायगोनल पे आपको 11 11 11 दिया है, बाकी सारी एंट्रीज 10 है और आपको डिटर्मिनेंट पूछा है। एक तो सिंपल प्रोसेस जो थोड़ा सा सबने ही लगाया, जिनको कुछ नहीं समझ आया, कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ, बट मेक श्योर आपको पता हो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आप रो इंटरचेंज ना करो, नहीं तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, और आप अगर किसी रो में किसी रो का लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो था एक तो कि उन्होंने 4x4 पे लगाते रहे। ठीक है, जहाँ पे भी मिस्टेक करोगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक रूल्स नहीं पता है कि कौन से रो ऑपरेशंस पे डिटर्मिनेंट चेंज होता है, तो वहाँ पे गलती हो जाएगी। ठीक है, दूसरा बच्चों ने पूरा मल्टीप्लाई किया ओपन करके पूरा, है ना, -10 दिस देन +10 दिस देन 10। इतना सब कुछ हमें नहीं करना होता है एग्जाम में। ठीक है, आपको दूर से कुछ कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए क्या, और ये तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। ओके, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो नहीं आएगा फॉर श्योर। आप मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, केवल डायगोनल एंट्रीज 11 है, बाकी सारी एंट्रीज 10 है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, फाइन, सी 0 0 1 0 0 0 0 1, ओके, और नेक्स्ट मैं इसको कैसा लिख दूँ, सारी की सारी एंट्रीज 10। अब शायद आपको समझ आएगा, ओके मैम क्यों आपने आज ये ट्रिक पढ़ाई, है ना। सो यहाँ देखो, और आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी वाले को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 10 मैंने क्या कर दिया, 10 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो काम जो है ना वो बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। बाकी लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपैंड करके आप आंसर करके आगे बढ़ जाना। कैसे, आपने माना कि सपोज ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ कितनी आने वाली हैं, 1 आएगी, 1 आएगी। इतना कुछ भी एग्जाम में हम साफ सुथरा नहीं लिखते, वो तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, वरना 1 1 1 1 करके बढ़ जाते। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में आप कैसे भी करो, नोबडी इज लुकिंग एट योर हाउ यू हैव रिटन। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले समझाया, क्या समझाया, कि अगर 1 सारी एंट्रीज हैं किसी मैट्रिक्स की, तो केवल एक आइगन वैल्यू जो है वो उसके ऑर्डर के बराबर आएगी और बाकी सब 0 आएंगी। तो मतलब इसके केस में क्या होगा, आइगन वैल्यू कितनी आएंगी, 0 0 0 और 4x4 की है तो 4। अब क्योंकि ये तो हमारे पास बी मैट्रिक्स थी, लेकिन ये किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है, तो वो स्केलर इसकी आइगन वैल्यू में भी तो मल्टीप्लाई होगा। देखो, तो ऐसा नहीं लगता हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई, वो क्या आ गई, 0 0 0 और वो 40। अब क्योंकि ये i प्लस बी मैट्रिक्स है, तो टोटल इसकी आइगन वैल्यू क्या आएंगी, लैम्डा अगर निकालोगे तो इनको ऐड कर दो आपस में, क्या आएगी, 1 + 0 1। ठीक है, देन 1 + 0 1, 1 + 0 is 1 and 1 + 40 is 41, and you know that determinant is nothing but what, the product of all the eigen values। और आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, आइगन वैल्यूज आ गई 1 1 1 41, यानी आंसर कितना आएगा, 41। इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना होता है, सीधे लिखो यहाँ पे 1 1 1 1, 4 आइगन वैल्यू, इसकी 10 × 0 10 × 0 10 × 0 10 × 4, क्योंकि सारी एंट्रीज 1 है तो क्या आएगी, 0 0 0 40। ऐड करो, आंसर आपके सामने, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ाया मैंने आपको। फाइन, चलो अब एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के उस पर दिया था, बट आई डोंट नो, देख तो सारे लोग रहे हैं, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। गलत हो जाने के डर से अगर आंसर नहीं कर रहे हो तो फिर तो प्रोग्रेस होने से रही। ठीक है, चलो, बट आज मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन
के बिहाफ पे क्वेश्चन दिया था जहाँ पे कुछ कुछ यूज़ करना था, बट इट्स ओके, नो, ओनली आई थिंक 2 or 3 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट। आपको बोला है P बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है, और वो कैसे डिफाइन किया है बस हम उतना ही लिखेंगे, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ओके, P3 से डिफाइन किया है, फाइन। सो वी हैव a3x क्यूब, और इन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया है कि कोफिशिएंट्स इधर उधर कर दिए, a3x क्यूब है तो उसको a3 कर दिया है, a2x स्क्वायर को हमने a2x कर दिया है, ऐसा कुछ, फाइन। सो दिस इज योर a3 प्लस a2x प्लस a1x स्क्वायर प्लस a0x क्यूब, ठीक है। तो हमने कोफिशिएंट्स जो है x स्क्वायर x क्यूब के और कांस्टेंट पार्ट को इधर उधर कर दिया। अब विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी और देखनी विच प्रॉपर्टी गेट सेटिस्फाइड। तो पहले तो मैट्रिक्स चाहिए। अब स्टैंडर्ड बेसिस हमको क्या दिया है, 1x स्क्वायर और क्या दिया है x क्यूब, क्योंकि हम P3 से डील कर रहे हैं तो पहले तो वही निकाल लेते हैं। तो T ऑफ 1 क्या आएगा, अब a0 x क्यूब पे जा रहा है तो वो x क्यूब आ गया, उसको हम क्या लिख सकते हैं 0 × 1, क्योंकि ऑर्डर याद रखना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप ऑर्डर इधर उधर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप T ऑफ x निकालोगे तो a1x है, तो a1x कहाँ जा रहा है, a1x स्क्वायर पे, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 × x स्क्वायर आएगा, रेस्ट ऑल 0। x स्क्वायर का निकालोगे तो ये a2x स्क्वायर आएगा, कंपेयर करोगे वो कहाँ गया a2x पे, यानी ये x पे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 × x। देन T ऑफ x क्यूब निकालोगे, a3x क्यूब कहाँ गया है a3 पे, यानी ये 1 पे चला जाएगा, तो 1 × 1। अब आप देखो आप जो मैट्रिक्स फॉर्म करोगे वो कैसी बन रही, क्या मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। 0 × x क्यूब, दिस इज 0 × 1, ओके, this is your 0 × 1 plus 1 × x plus 0 × x square plus 0 × x cube, this is 0 × x plus 0 × x square 0 × x cube। अब आपको M मैट्रिक्स जो मिलेगी वो आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, बट आपको पता है कि आप इस केस में जो ट्रांसपोज लेने वाले हो मैट्रिक्स का वो भी कैसा आने वाला है, सेम ही आने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स को पहचानते नहीं हो, ठीक है। कई तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। एक तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, किसकी, इन्वोल्यूटरी की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। सपोज़ नहीं दिमाग में आता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है ना, आइडेम्पोटेंट क्या है, नीलपोटेंट क्या है, नहीं समझ आता, जिन बच्चों को, जो कि मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी पूरा सिलेबस, ओके, तो मैं आपको भी समझाऊंगी, बट अगर नहीं आता है तो इतना तो याद था ना कि मैम ने अच्छा हमको ये पढ़ाया था कि ये तो बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स है और इवन ऑर्डर की है, तो 2 आइगन वैल्यू 1 आएंगी और 2 -1, वो भी नहीं पता, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो याद होगा ना भाई सबको, ये तो कभी नहीं भूलोगे लास्ट क्लास में जो पढ़ा था। तो यहाँ से निकल के आ जाएंगी कि 2 आइगन वैल्यू जो हैं वो 1 है, 2 -1 है। अब बस वापस आ जाओ ऑप्शंस पे, क्या करना है, इसकी सारी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, एक तो 1, एक -1, इसकी सारी ही 1, क्या सारी आइगन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने पे 0 मिल रहा है, नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी सेम चीज़, आइगन वैल्यू भी ये चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए, आइगन वैल्यू यहाँ पे भी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। एम स्क्वायर की अगर आइगन वैल्यू आप देखोगे, ये एम की आइगन वैल्यू है, तो एम स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होंगी, आइगन वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दो तो वो 1 1 1 आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ देखो इसकी सारी आइगन वैल्यू 1 1 1, इसकी भी सारी आइगन वैल्यू 1 1 1, सेटिस्फाई हो रहा है, 20 द आंसर। यहाँ पे नहीं हो रहा है, इनकी सारी आइगन वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 2 2 2। सो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट एम स्क्वायर, 4 × 4 मैट्रिक्स का एम स्क्वायर निकालने हम थोड़ी ना जाएंगे। आप आइगन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ऐसी छोटी छोटी जगह पे, तो वहाँ पे भी ट्रिक यूज़ हो गई बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक है। और अगर आपको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स पता होता तो भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि एम स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 4 × 4 का, ओके। तो ये था आज का सेशन जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए अलॉन्ग विद द 2 मोर पॉइंट्स विच, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन सा, ऑल द मैट्रिक्स विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स यूनिटी, their eigenvalues are what, n-1 eigenvalues are going to be 0 and 1 eigenvalue is going to be the order of the matrix, okay। so that was very important। और 2 साल से मैं इसको पढ़ा रही थी और इस साल देखो पूछ लिया गया,
ठीक है। सो डोंट थिंक लाइक दिस कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो ये हमारे काम में नहीं आएगा, कुछ भी आपके काम आ सकता है. सो मेक श्योर यू आर लर्निंग एवरीथिंग, you are not skipping any part that has been mentioned in your syllabus. Okay, and one more important thing, today you will get an important announcement regarding your classes, and so just wait for that video. And most probably this will the classes, regular classes, even the regular courses will start in this month only, but that will be informed to you in a separate video. So just wait for that video, and till then you can write your feedback in the comment box, and all the topics that have been mentioned in IIT JAM syllabus or in any competitive exam, and you want us to come with that topic, write down that topic. And if you have any doubt in any of the trick which I am mentioning, any of the question, आप उसे भी पूछ सकते हो हमसे, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड आप नॉक नॉक यार एजुकेशन से एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको कुछ अपडेट्स मिलेंगे रिगार्डिंग क्लासेस. फाइन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच.